And Rudyard Kipling's wife describes an interview an unnecessary intrusion in a man's life, a person's life, to hurt his or her feelings, asking unnecessary questions. And giving an example of the day when two reporters from Boston interviewed her and ruined the entire day. And it is like a primitive culture when somebody captures the picture of the particular persons, then he or she considered that the person steals her or his soul. So in this perspective, an interview is a very popular and common thing, but in spite of all this, there are the two controversial points about it. But as far as the conclusion is concerned, interview is the best medium to represent ourselves and to be communicate with others, to express whatever we have inner side. And it is a kind of best communication medium to become popular, to express what we have, whatever we have within, and to expose ourselves to develop our inner qualities, which is a light one, just like a sleeping thing. Hence, we can say interview is the best medium to communicate with others and to become popular in life. Interview must be repeated again and again to get confidence in someone's life so that now we are going to discuss about the second part of the lesson and interview where the Hindu news reporters takes an interview of professor Bologna University in Italy, and it is Professor Umberto Eco. Umberto Eco is a professor on the subject semiotics. Semiotics, a kind of a science belonging to script and symptoms belonging to shine. Hence, Umberto Eco emerges as a great novelist, as a dramatist, as well as the prose writer. But the most important thing, as far as his writing style is concerned, he always chooses the philosophical, ethical, along with the detective look in his novels. And even his academic texts are children books related to philosophical and ethical, social values, and aesthetic perspective in his writings. Professor Umberto Eco is asked that how he composes or writes a kind of different and exceptional way of writing, then Umberto Eco uh, explains that he can't clarify how the things is managed, but he mentions that after finishing a kind of text, a kind of thing, he that it is an ordinary one. And most of his famous novels, The Son of the Rose, make a good success in his life and became a powerful writer among the novelists. अब हम इंटरव्यू यानी साक्षात्कार नामक पाठ के दूसरे खंड की ओर चलते हैं, जहां पर द हिंदू नामक समाचार पत्र के पत्रकार प्रोफेसर मुकुंद इटली में बोलंगाना विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर अम्बर्टो इको हैं उनका साक्षात्कार लेते हैं। वो अम्बर्टो इको से पूछते हैं कि किस प्रकार से उनकी जो रचनाएं हैं वो अन्य उपन्यासकारों और लेखकों से भिन्न हैं। इस पर अम्बर्टो इको मुस्कुराते हैं और बताते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि वे इन रचनाओं को कैसे कर देते हैं। अम्बर्टो इको जो लक्षण शास्त्र के प्रोफेसर हैं वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि वे उन रचनाओं को सामान्य रूप से लिखते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है। उसके बाद में वो उनके बारे में चर्चा होती है। प्रोफेसर मुकुंद कहते हैं कि आपकी जो रचनाएं हैं, चाहे वो सामान्य रूप से उपन्यास हों, चाहे वो गद्य हों, चाहे वो अन्य कथानक हों, चाहे बच्चों की लिखी गई पुस्तक हैं, उसमें भी आप एक तरफ जासूसी रखते हैं तो दूसरी तरफ दार्शनिक और नैतिक परिप्रेक्ष्य को रखते हैं। और यहाँ तक कि आपकी जो बच्चों की लिखी गई पुस्तकें हैं उसमें भी हिंसा का बहुत कम ही उल्लेख होता है। अम्बर्टो इको कहते हैं कि वे प्रायः ऐसे विषयों की ओर जाते हैं जैसे कि कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पर अंतरावकाश हो, अर्थात जिन चीज़ों को लोग परित्यक्त कर देते हैं वे उन्हीं विषयों पर लिखते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी विचार का जो कारण है, किस वजह से ये विचार उत्पन्न होता है, वो उस जगह पे चले जाते हैं और वो अंतरावकाश की बात करते हैं जहाँ पर लगभग एक खाली पने की स्थिति होती है, जहाँ से किसी चीज़ का
Now we have a few words to describe in Hindi as the student demands. So in Hindi, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। इस पाठ में जो लेखक हैं उन्होंने दो अलग अलग मतों के बारे में बताया है, जिसमें एक मत ये है कि साक्षात्कार लोकप्रिय होने का और लोगों के बीच में प्रचलित होने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। कई लोग इसकी पुनरावृत्ति करते हैं ताकि वह पूरे समाज में, क्षेत्र में, देश में और यहाँ तक विदेश में भी लोकप्रिय हो। तो कुछ का मत है कि ये अपने आप में एक जघन्य अपराध की तरह है, जो व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर किए गए सवालों के कारण होता है, जिसमें वे मानसिक रूप से और बौद्धिक तथा आत्मिक क्षमता से प्रताड़ित होते हैं। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार से वे बचने की बात करते हैं, जिनमें रुडयार्ड किपलिंग और उनकी पत्नी दोनों इसके पक्ष में हैं। वह इसको एक जो है अनचाहा और बेवजह यानी फिजूल का किए गए क्वेश्चन को मानते हैं, जिससे उनकी प्रतिभाओं पर असर पड़ता है। इसी में से एक उदाहरण बताते हैं रुडयार्ड किपलिंग की पत्नी कि दो पत्रकार बोस्टन से आए और उन्होंने उनका साक्षात्कार किया और उनका पूरा दिन खराब चला गया, और इसी कारण से वे हमेशा इंटरव्यू देने से बचती हैं। जबकि वस्तुतः अगर देखा जाए तो इंटरव्यू यानी साक्षात्कार वास्तव में प्रचलित होने का सबसे अच्छा माध्यम है। प्रोफेसर अम्बर्टो इको की एक रचना द नेम ऑफ द रोज, जो लैटिन भाषा में लिखी गई, उसने उन्हें पूरे विश्व में महान बना दिया। यद्यपि उसको प्रकाशित करने वाले प्रकाशकों ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि वो रचना उनकी सर्वश्रेष्ठ साबित होगी, क्योंकि उस समय लोगों को लैटिन भाषा का ज्ञान नहीं था। कई लोग तो कैथेड्रल चर्च भी उतना ज़्यादा नहीं जाते थे, फिर भी उसकी जो है लाखों प्रतियाँ बिकीं और कम पड़ गईं। तो ये कहना कि कोई चीज़ कब सफल होगी, लोग उसको कब समझ पाएंगे, ये अपने आप में भी एक आश्चर्य है। कभी कभी कोई चीज़ें जो सामान्य रूप से होती है, लोग उसको पूरी तरह से सरलता से प्रथम दौर में समझते हैं, लेकिन जब उन चीज़ों से वो ऊब जाते हैं तो उनको बौद्धिक, तार्किक और मानसिक रूप से कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो बिल्कुल एक्सेप्शनल हो, यानी हट करके हो। यही कारण था कि जो अम्बर्टो इको से उनका जो उपन्यास था द नेम ऑफ द रोज, जो लैटिन यानी ग्रीक भाषा में था, वो पूरी तरीके से प्रकाशित हुआ और उसकी अत्यधिक प्रतियाँ बिकीं, और इसी ने उन्हें पूरी तरीके से लोकप्रिय कर दिया। अम्बर्टो इको एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को बनाए रखा। उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए वो न तो व्यथित हुए और ना ही लालायित हुए। ये जो उनकी रचना है, ये पूर्ण रूप से उनकी दृढ़ता को, उनकी विश्वसनीयता को और उनकी उस आत्मकथानक शैली को प्रस्तुत करती है, जिसमें वो स्वतंत्र होकर के अपने विचारों को व्यक्त करते थे। और ये जो उनके अंदर निरंतरता का भाव है, आत्मिकता का भाव है और अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का जो भाव है, उसने उन्हें एक महान उपन्यासकार ही नहीं, एक महान जो है